Light symbolizes the divine presence of God. Down through the ages, our Indian tradition teaches us light brings life and hope. पवित्रता की प्रतीक ये ज्योति हमें अंधेरे से उजाले की तरफ ले जाती है। हमारे हृदय में जो विकारों का अंधकार है उसे समाप्त करती है। हमें अपनी ज्योति से नई ऊर्जा भरती है। इसके साथ साथ हमें हर कार्य को पूरी पवित्रता से करने को प्रेरित करती है। I call upon our lovely children to welcome the gathering of today's fest. Welcome, honorable guests. Welcome, dear parents. Welcome to our dance floor. We are players. Want to win? Come on and let's us. We are magicians. Welcome, honorable guests. Welcome, dear parents. Welcome to our dance floor. We are players. Want to win? Come on and let's us. We are magicians. Welcome. Welcome. We are the birds of open sky. We want to soar high and high. We are the birds of open sky. We want to soar high and high. Our spirit is great, winning spirit always great. Our secret is great, your blessing that's great. Come again and bless us. We are well-wishers. Welcome, honorable guests. Welcome, dear parents. Welcome to our grand school. We are players. Want to win? Come on and bless us. We are well-wishers. Welcome. Welcome. World is a playground, life is a game. We are living to play the game. World is a playground, life is a game. We are living to play the game. We are players, come on, don't be losers. Come on, let's see us. Come on, be the winners. Come on, welcome, joy, enjoy. We are well-wishers. Welcome, honorable guests. Welcome, dear parents. Welcome to our dance floor. We are players. Want to win? Come on and bless us. We are well-wishers. Welcome, honorable guests. Welcome, dear parents. Welcome to our dance floor. We are players. Want to win? Come on and bless us. We are well-wishers. Come on and bless us. We are well-wishers. Come on and bless us. I now call upon Nakshatra of class 10th B to throw the light on the importance of sports in students' life. Sports in a way are a great source of knowledge on what life is. It develops skills. It helps us to develop skills like leadership, competitiveness, patience, teamwork, and determination of success. These are some of the good and the must-have qualities. With this, I would like to end my speech. It was truly an honor for me to present my speech. Thank you. Let us have a look at the presentation on life of Dhyan Chand and Indian sports in India.
really great to remember some sports personalities during this big occasion, which is celebrated on a large scale all over the country. Thank you, ma'am, for such a beautiful presentation. I request Pandekar sir to come and give some information on sports. सभी को मेरा नमस्कार। 29 अगस्त 2021 राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर उपस्थित सम्माननीय प्रमुख अतिथि आचार्य महोदय जी और विशेष अतिथि भूपेंद्र सिंह एमपी स्पोर्ट्स अकेडमी और मेरे सभी आदरणीय शिक्षक साथी, अभिभावकों और मेरे प्यारे विद्यार्थी, 29 अगस्त 2021 खेल दिवस। भारत में खेल दिवस का बहुत महत्व है। ये एक पर्व है कि जो हर साल 29 अगस्त को मनाया जाता है। इस पर्व को बहुत हर्ष का विषय है कि देश के लिए अभिमान है कि इतने साल के बाद और इसी उपलक्ष्य में ये खेल रत्न पुरस्कार उनके सम्मान के लिए यानी मेजर ध्यानचंद जी के सम्मान के लिए दिया जाता है। ध्यानचंद जी के खेल के उपलब्धियों का एक लंबा सफर था। मेजर ध्यानचंद जी 22 साल तक भारत के लिए खेले। अपने खेल कैरियर में उन्होंने 510 गोल किए। इसमें से इंटरनेशनल मैचेस में 400 गोल। कहा जाता है कि जब वो खेलते थे तो मानो गेंद स्टिक को चिपक जाए। हालांकि के एक मैच में यानी मैच के दौरान चुंबक होने की भी आशंका में उनकी स्टिक तोड़ा गया, उनकी स्टिक को तोड़ा गया और देखा गया कि सचमुच उनके स्टिक में चुंबक है। जापान के एक मैच के दौरान उनकी स्टिक गोल लगे होने की भी बात नहीं जा सकती। क्योंकि स्टिक को गोल लगी हुई है, उसको चेक करें। पहली बार तो उनकी स्टिक भी तोड़ दी, देखा उन्होंने कुछ नहीं निकला। फिर बाद में ये कहा गया कि नहीं कुछ तो गड़बड़ है। तो बहुत सारे एक्सपेरिमेंट तब किए क्योंकि उनके हॉकी स्टिक में है क्या। लेकिन हमें ये शिक्षा मिलती है इससे कि उनका जो स्किल था, एक बार अगर वो उनके स्टिक में बॉल आ जाती थी हॉकी की तो वो मुश्किल था दूसरों को लेके आना, वो सीधा वो गोल के पास ही। और ये भी कहा जाता है कि जब जब उनके हॉकी स्टिक का परीक्षण किया गया तो उसमें कुछ भी नहीं है। और यही सब बच्चों के लिए, सभी जितने भी स्पोर्ट्समैन हैं उनके लिए एक प्रेरणा, क्योंकि उनका नाम भी देखिए वो भी एक साधारण घर से है और उनका नाम पहले उनका ओरिजिनल नाम है ध्यान सिंह। लेकिन ये चंद कैसे हो गए? तो ये जब भी प्रैक्टिस करते थे तो शाम रात में प्रैक्टिस करते थे और जब चांद के प्रकाश में उनका प्रैक्टिस चलता था और वो ड्रिबलिंग करते थे, अकेले ही ड्रिबलिंग करते थे। तब ये सबने देखा हम ये रात में और चांद की रोशनी में प्रैक्टिस करते हैं, तो इसकी वजह से उनका नाम चांद है। और फिर से यही नाम मुझे हो गया मेजर ध्यानचंद। भारत सरकार ने इस महान खिलाड़ी को सम्मानित करते हुए 2012 में 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस मनाने का फैसला किया और उन्हें भारत सरकार द्वारा 1956 में पद्म भूषण सम्मान से सम्मानित किया। और ऐसे महान हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद जी को मेरा शतशः प्रणाम। जय हिंद। Thank you, sir, for your inspirational and motivational speech. It doesn't matter if the world don't stop by, if they don't hear your cries, if they don't read your story. It doesn't matter, they don't believe your story. So
what? You have so much to give. Leap over that wall and let this situation spin, because at the end you will. And this is the time when they will all come around, because you are the winner and you have left everybody spellbound. A winner is not someone who is born. Instead, a winner is someone who put, plan to win, prepare to win, and expect to win. Let us have a video presentation on the posters made by our school children who are missing this event a lot due to this pandemic. What we displayed was only the selected posters, but from this we can make out how much our school is missing our children and how much our children are missing the school, the playground, the class, the empty corridors. Teamwork divides the task and multiplies the success. Tune yourself and dance to the colorful rhythmic performance. Dance gives dreams to the art, where we have our students in front of us to perform a rhythmical dance. चलना पूछना पूछ के चलना मरना जीना मर के जीना मांगने वाली चीज नहीं है मौका उसका जिसने छीना गिरना उठना उठ के चलना चढ़ जा अंबर जीना जीना याद रहे ये शर्त सफर की पीछे मुड़ के देख कभी ना जीत का जुनून है तो हार सोचना जब जिंदगी है
habits that go hand in hand with success in every area of endeavor, which develops a reputation. The way one works determines the quality and quantity of rewards. We have one such great personality today with us, that is Mr. Bhupendra Singh. We will hear his message through a video presentation. नमस्कार, मेरा नाम भूपेंद्र सिंह है। मैं मध्य प्रदेश राज्य से हूँ। आप सभी शिक्षकों और छात्रों को मेरी तरफ से नेशनल स्पोर्ट्स डे की हार्दिक शुभकामनाएं। मैंने MPCA इंदौर होलकर स्टेडियम में उत्कृष्ट प्रशिक्षकों द्वारा एक खिलाड़ी के रूप में विधिवत ढंग से प्रशिक्षण प्राप्त किया, जहां मुझे बेहतरीन लोगों के सानिध्य में सीखने का अवसर प्राप्त हुआ। जैसा कि कहा भी गया है, हेल्दी माइंड लिव्स इन अ हेल्दी बॉडी। ये तो तय है कि जो लोग खेल से जुड़े हुए होते हैं उनका केवल शारीरिक विकास ही नहीं अपितु उसके हिसाब से शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक, सामाजिक विकास भी होता है। कहने का तात्पर्य ये है कि उसका सर्वांगीण विकास भी होता है। प्लेटो का भी कथन है कि जो बच्चे खेल खेल में सीखते हैं वो बंद दीवार के अंदर नहीं सीखते हैं। 2010 से 2014 के बीच मैंने मध्य प्रदेश से अंडर 16 की टीम को रिप्रेजेंट किया, जिसमें मुझे 2013 में बांग्लादेश जाने का भी अवसर प्राप्त हुआ, जहां पर हमारी टीम ने बेहतरीन प्रदर्शन किया। इस बीच हमें हमारे मुख्य कोच श्री अमय खुरासिया जी और संजय जगदाले जी के मार्गदर्शन में सीखने का बहुत ही अद्भुत अवसर प्राप्त हुआ। मेरे साथ के कई खिलाड़ी बहुत अच्छे स्तर पर खेल रहे हैं। उनमें से आवेश खान जी हैं, जो वर्तमान में दिल्ली कैपिटल से वर्तमान में IPL खेल रहे हैं। वह राष्ट्रीय टीम के भी वह सदस्य हैं। ये आवश्यक नहीं है कि आप किसी खेल की फील्ड में बहुत बड़े प्लेयर बन पाएं, लेकिन जहाँ पर आप वहाँ पे जो चीज़ें सीखते हैं, जो स्किल सीखते हैं, वो आपकी ज़िंदगी में हर क्षेत्र में काम आती है। जैसे जोखिम उठाने की प्रवृत्ति, आप में रिस्क लेने की प्रवृत्ति आती है, आप एक बेहतरीन कॉन्फिडेंस वाले व्यक्तित्व के साथ उभर कर आते हैं। तो इसीलिए मैं आप सभी बच्चों से कहना चाहूँगा कि आप अपनी पढ़ाई भी करें व खेल से भी, खेल के महत्व को भी समझें व इससे जुड़े रहें। नहीं है कि आप खेल की दुनिया में सफलतम उपलब्धि प्राप्त कर पाएं। आप खेल के माध्यम से कई चीज़ों से भी जुड़े रह सकते हैं, क्योंकि इसमें भी क्वालिफिकेशन होती है। जैसे मैं बैचलर ऑफ फिजिकल एजुकेशन मैंने अभी अपना कंप्लीट किया है। इसके बाद मैं मास्टर्स ऑफ फिजिकल एजुकेशन को कंप्लीट करूंगा, जो मुझे खेल से जुड़े रहने के लिए प्रेरित करता है। इसमें बहुत सारी फील्ड हैं जिससे आप खेल से जुड़े रह सकते हैं। जैसे स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट करके आप एंकरिंग कर सकते हैं, आप स्पोर्ट्स के बारे में खोज खबर रख सकते हैं। स्पोर्ट्स मैनेजमेंट से आप एक अच्छे मैनेजर बन सकते हैं, टीम मैनेजमेंट संभाल सकते हैं। Mr. Bhupendra Singh is one of our KB teacher's son. I would like to inform you that he was only 10 years old when he was selected by the Sports Academy of Madhya Pradesh. The academy took all the responsibilities for him. That is like his education, his training, his sports skill. Everything was taken care by the Madhya Pradesh Sports Academy. Now I request our respected principal sir to come and share his thoughts and views, and also to ignite the young minds, those who are sitting out there. आज के कार्यक्रम में पधारे हमारे सभी शिक्षक साथी, प्यारे बच्चों, और बाद में जो बच्चे इसे ऑनलाइन रिकॉर्डेड देखेंगे, सभी को राष्ट्रीय खेल दिवस की दिनों शुभकामनाएं। और हालांकि 29 तारीख को था, लेकिन महामारी को देखते हुए और कार्यक्रमों की संख्या को देखते हुए KBS ने निर्धारित किया कि इसे 4 तारीख तक कभी भी मनाया जा सकता है। तो आज हम लोग इसे अपने विद्यालय स्तर पर मना रहे हैं। और इससे पहले हमारी एक छात्रा ने, हमारे पांडेकर सर ने, श्री भूपेंद्र जी का हमको जो संदेश मिला है, उसमें आप सभी ने देखा बहुत अच्छा एक प्रेजेंटेशन भी खेल विभाग के द्वारा और CC विभाग के द्वारा तैयार किया गया।
और पिछले 2-3 साल से हम मना रहे हैं, तो बहुत कुछ आप ध्यानचंद जी के बारे में जानते भी हैं, काफी कहानियां सुनते हैं। और उन्होंने क्या किया, कहाँ वो हुए, 1928 का, 32 का, 36 का उन्होंने ओलंपिक जीता, गोल्ड मेडल जीता, और उनका योगदान, और काफी देर से ही सही लेकिन देश में इस बात को पहचाना कि उनको एक सम्मान देते हुए उनके नाम पर इस खेल दिवस को शुरू किया। आज यदि हम देखते हैं तो टोक्यो 2020 जो 21 में हुआ, थोड़ा लेट हुआ महामारी की वजह से, उसमें अभी तक भारत ने अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया है, 7 मेडल लेकर आए। वो हमारा सर्वश्रेष्ठ है। यदि हम उसको टैली में कहीं देखते हैं तो हम ये पाते हैं कि अभी हमको बहुत कुछ करने की जरूरत है। अभी बता रहे थे कि 1928 में जब देश आजाद नहीं हुआ था, उस समय भारत ने पहला स्वर्ण जीता हॉकी में। और यदि हम 2020 की टैली देखें तो जो टॉप कंट्रीज हैं उसमें हम अमेरिका को पाएंगे, जापान को पाएंगे, चाइना को पाएंगे। चाइना ने सबसे पहला ओलंपिक गोल्ड मेडल 1984 में जीता, आज से कुछ साल पहले। 84 में पहला गोल्ड मेडल है चाइना का, और फिर उसकी प्रोग्रेस देखिए। और हम लोगों ने 1928 में हॉकी में गोल्ड मेडल एक बार जीता, 32 में दूसरी बार जीता, 36 में तीसरी बार जीता, और हमारी स्थिति 84 में गोल्ड मेडल जीतने के बाद जिस तरह से चाइना ने और उसके लोगों ने खेल को एक मिशन के रूप में लिया, उसके बाद हम देखते हैं कि किस तरह से मेडल्स की झड़ी लगी। और वो सारी कंट्रीज जो टॉप में हैं, चाहे अमेरिका हो, चाहे वो जापान हो, चाहे वो रशिया हो, उन सभी ने और उन सभी के लोगों ने इस चीज को एक कल्चर के रूप में लिया, और ये माना जाने लगा कि ये भी देश की प्रगति को और ताकत को दिखाने का एक तरीका है। अभी बात वो जो टॉप कंट्रीज हैं उनमें इस बात का बहस नहीं हो रही है ज्यादा से ज्यादा मेडल कैसे लाए जाए। वहां बहस इस बात पर है कि मेंटल वेलबीइंग इसके साथ किस तरह से जोड़ा जाए। अब उनके लिए मेडल्स की संख्या कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, वो तो उन्होंने हासिल कर ही ली। हमारे यहाँ भी हम लोग हालांकि बीच में जिस तरह का ध्यान दिया जाना चाहिए था वो नहीं दिया गया, लेकिन अब वर्तमान सरकार बहुत ध्यान दे रही है। आप लोगों ने देखा होगा किस तरह से माननीय प्रधानमंत्री जी ने स्वयं जो खिलाड़ी वहाँ से टोक्यो से आए उनके साथ मुलाकात की, 15 अगस्त पर उनको सराहा, उनको खाने पर बुलाया और व्यक्तिगत रूप से जाकर हर एक खिलाड़ी से बात की, चाहे उन्होंने जीता हो चाहे नहीं जीता हो। और यही बात बहुत बड़ी है कि खेल में सिर्फ जीतना इतनी जरूरी बात नहीं है जितना कि उसमें भाग लेना। तो सारे बच्चे अब इस बात को भी देख रहे हैं कि खेलों से सिर्फ आपको पुरस्कार नहीं मिलता बल्कि एक कैरियर भी बन सकता है। डी भूपेंद्र ने अपने मैसेज में कहा, अपने संदेश में कहा कि जरूरी नहीं है कि आप मेडल जीत कर ही इसमें सफल हो, और भी बहुत सी उसके अंदर खेल के अंदर इस प्रकार की चीजें हैं जिसके बारे में आप कर सकते हैं। एक दिन हमारे यहाँ शिक्षक के साथ में कर रहा था कि नीरज चोपड़ा ने एक भाला फेंका, कम से कम उसको 18 से 20 करोड़ रुपए उस एक भाला फेंकने के मिले। 18 से 20 करोड़ रुपए, सेना में नौकरी, प्रमोशन, एक दूध कंपनी ने उनको अपना एड किया है और आगे भी मिलेगी। और इसी तरह से अब ये एक कल्चर बन रहा है, इससे ये भी मालूम पड़ता है कि अब सिर्फ कैरियर आप पढ़ लिख के इंजीनियरिंग में या मेडिकल में या इसमें नहीं बना सकते, बल्कि आप बहुत अच्छा कैरियर खेलों में बना सकते। और ये हमारे यहाँ सभ्यता में है। आप देखेंगे कि पुरानी जितनी मूर्तियां हैं वो 2000 साल पुरानी हो, 5000 साल पुरानी हो, वो सब फिजिकली फिट। उन मूर्तियों में कहीं भी कोई भी आपको बीमार, कोई भी
मटन की दुकान या ऐसा कोई नहीं दिखेगा, बिल्कुल फिजिकली फिट लोग दिखेंगे उसके अंदर। और खेलों का आयोजन आज से नहीं बल्कि 5000 साल पुराना इसका इतिहास कम से कम जो रिकॉर्डेड है वो तो मिलता ही है। हम देखते हैं कि भगवान कृष्ण अपने बचपन में खेल में अपनी टीम बनाया करते थे ग्वाल बालों की, और खेल में उन्होंने कई राक्षसों को मारा। महाभारत के प्रसंग में यदि हम देखें तो जब कौरवों और पांडवों की शिक्षा पूरी हो गई तो उसके बाद जैसे ये ओलंपिक आयोजित होते हैं, वैसे एक खेल प्रतियोगिता आयोजित हुई जहाँ पर पहली बार कर्ण और दुर्योधन की मित्रता हुई। तो ये हमारे कल्चर में बहुत पहले से, बीच में हम शायद भूल गए, लेकिन अभी हम देख रहे हैं कि सिर्फ पूरे देश में नहीं बल्कि केंद्रीय विद्यालय संगठन भी इसके ऊपर बहुत जोर देगा। और केंद्रीय विद्यालय संगठन मेरा मानना है ऐसा बढ़िया प्लेटफॉर्म है, जितने बच्चे इसके अंदर पढ़ते हैं, अब तो जितने शिक्षक भी पढ़ाते हैं, केंद्रीय विद्यालय संगठन में शिक्षकों के लिए भी खेल प्रतियोगिताएं आयोजित की गई, जिसमें कि शिक्षक भी राष्ट्रीय स्तर तक उसका लाभ ले सकते हैं। लेकिन बच्चों के लिए विशेष रूप से एक ऐसा मंच है जो अपने विद्यालय स्तर पर, अपने क्लस्टर लेवल पर, रीजनल लेवल पर, नेशनल लेवल पर और इंटरनेशनल लेवल पर बच्चे को इतना बड़ा पैनोरमा प्रोवाइड करता है, उपलब्ध कराता है कि अगर आपके अंदर जरा सी भी ललक है और आपने अपनी प्रतिभा को पहचान लिया है तो आपको बिना एक पैसा खर्च किए राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ये विद्यालय, ये केंद्रीय विद्यालय संगठन आपको खेलने का अवसर प्रदान करता है। तो मेरा सभी बच्चों से अनुरोध है, कोई भी खेल हो सकता है, हमको बस पहचानना है। वो जरूरी नहीं है कि बाहर आउटडोर गेम ही हो, इंडोर गेम भी हो सकता है, और उसके अंदर यदि आपके अंदर प्रतिभा है तो आपको विद्यालय और केंद्रीय विद्यालय संगठन वो सारी सुविधाएं प्रदान करने की कोशिश करेगा जिससे कि आप उसको ला सकते हैं। इस खेलों के महत्व को सबसे अधिक अगर झटके के साथ समझाया है तो इस महामारी ने समझाया है। इस कोरोना ने ये बात बता दी कि जो लोग फिजिकली फिट हैं, अधिकांश, कुछ अपवाद भी थे हालांकि इस महामारी में, लेकिन जो लोग फिजिकली फिट हैं उनको इस महामारी से बहुत अधिक नुकसान नहीं। ज्यादातर जो अप्रिय घटनाएं घटित हुई या जो लोग ज्यादा इससे परेशान हुए वो लोग वही थे जिनका शारीरिक श्रम और जिनकी शारीरिक स्थिति उतनी अच्छी नहीं थी। डॉक्टरों ने कहा इस बात को कि वो लोग, उन लोगों के लिए खतरा अधिक है जो लोग शारीरिक रूप से बहुत ज्यादा एक्टिव नहीं है। और मैंने अपने विद्यालय में कई लोगों को देखा है पिछले 5 वर्षों में जिन्होंने अपनी फिजिकल फिटनेस को सुधारा। आज कई लोगों को देखा है, कई लोगों को देखा है उन्होंने बिगाड़ा भी। तो ये जो इस तरह के आयोजन है वो हमको फिर से अवसर प्रदान करते हैं, क्योंकि आप चाहे मानो चाहे नहीं मानो, आपका शरीर दुनिया में एकमात्र जगह है जहां आप रहोगे, और कोई दूसरी जगह, कोई दूसरा इंस्ट्रूमेंट, कोई दूसरी बॉडी, कोई दूसरा ऑब्जेक्ट नहीं है जहां पर आप रह सको और जो आपके साथ 24 घंटे बिना किसी की उसकी सहायता के उपलब्ध रहे। व्हाट इज ए टेम्पल, ये भी कहते हैं। यदि आप इसकी मंदिर की तरह आप इसकी देखभाल करोगे तो ये भी आपको एक बहुत अच्छे मित्र की तरह साथ देगी। अन्यथा दुनिया के सारे सुख, सारे शरीर संबंधी, सारे मित्र, सारा पैसा किसी काम का नहीं है यदि आपका शरीर ही आपके साथ नहीं है। तो खेल विभाग को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सभी को इस राष्ट्रीय खेल दिवस की ढेरों शुभकामनाएं। हम सभी लोग फिट बने और दूसरों को भी प्रेरित करें कि किस तरह से वो लोग भी अपने आप को फिट रख सकते हैं। और इसका कोई पैमाना नहीं है, वो 2 किलोमीटर दौड़ लेता है, दौड़ लेती है, तो मुझे भी दौड़ना चाहिए। मैं कितना कर सकता हूँ, मैं कितना कर सकती हूँ। और आजकल योग का जितना अधिक प्रचार प्रसार हो रहा है, अभी आप देखेंगे, एक मुझे बता रहे थे कि सर मेडल्स के साथ साथ अब जो डेवलप कंट्री है, खासकर चाइना और दूसरे देश, वो योग में और फुटबॉल में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट ले रहे हैं, बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं।
आगे आने वाले देशों में वर्षों में हो सकता है कि हम ये देखें कि योग के क्षेत्र में जहाँ से योग शुरू हुआ भारत, उससे आगे बाकी के देश निकलेंगे और उसका लाभ लेंगे। तो हम लोगों के साथ तो संस्कृति में ही ये है, केंद्रीय विद्यालय संगठन जिस संगठन में हम काम करते हैं, पढ़ते हैं, वो इसके ऊपर बहुत ध्यान दे रहा है। अब जरूरत इस बात की है कि हम आगे बढ़ें और इसमें क्या योगदान दे सकते हैं। या तो हम हाथ बांध के ऐसे दूर बैठे रहें, देखते रहें कि ऐसा हो रहा है, कुछ लोग कर रहे हैं, करने तो बहुत अच्छा करो, या हम भी कूद पड़े अपने जूते पहनकर, लेस बांधकर, चलो इसमें जितना हम कर सकते हैं हम भी करेंगे और उसका एक हिस्सा बनेंगे। आप सभी को राष्ट्रीय खेल दिवस की ढेरों शुभकामनाएं। जय हिंद। धन्यवाद महोदय। आपके इन शब्दों से मुझे पूरी उम्मीद है हमारे शिक्षक ही नहीं, जो पीछे बच्चे बैठे हैं वे भी बहुत प्रोत्साहित हो गए होंगे, बहुत प्रोत्साहन भरे आपने शब्द कहेंगे। किंतु कहा जाएगा कि इस तरह से खेल दिवस मनाया जाना वो अखरता है कुछ। आशा करते हैं कि अगले वर्ष ये बीमारी से हम सारी दुनिया को छुटकारा मिल जाए और हम बच्चों के साथ भी ये सारे दिवस मनाएं। इसी आशा के साथ हमारा कार्यक्रम अब अंतिम चरण में है। मैं राजमंगल सर को आमंत्रित करती हूँ। धन्यवाद ज्ञापन में राजमंगल सर। Feeling gratitude but not expressing is something like wrapping a gift but not giving. It is not happiness which gives us gratitude, but it's gratitude which gives us happiness. So today I, Rajmangala Yadav, is here for presenting that gift that we plan together today. Good afternoon, everyone. Respected principal sir, HM sir, learned colleagues, and my dear students. It gives me an immense pleasure to deliver vote of thanks today on this event. First of all, I would like to thank Secretary, our Chief Guest, Principal Sir, for gracing this event. I would like to extend my vote of thanks to all my learned colleagues and participant students for making this program successful. Last but not least, I would like to thank main programmer of this event, Mrs. Geeta Sabharwal Madam and Pandekar Sir, for coordinating this event so smoothly, and all committee members and students on this screen and off this screen who made this program so successful. Once again, I would like to thank everyone present over here. Thanks everyone. Have a nice day. Thank you. Special thanks to Yogesh Police sir for technical support. Thanks everyone. Thank you.